Welcome back, entrepreneurs. Now we have reached to the final module of our program we call entrepreneurship. From an idea to launch, how we can convert a simple yet impactful idea into a successful business model. This is what we have learned. हमने सीखा how we can find out an opportunity, how we can find out a problem and solve it, right? We have learned about how to find out the customer, how to validate that. हमने सीखा how to create a business plan, right? We have learned about the MVP, prototypes, testing, and then what we have learned, go to market strategy. And now we have reached to the final stage wherein we will learn about that how we can create an impactful pitch deck for our investors so that they can give us money, money, money. Yes, because obviously investment is one of the major factor for any entrepreneur so that they can scale up their business or they can just start or they can roll it on with passion, with energy, and obviously with some monetary support. But before we proceed, let's do a quick recap of our last module, which was go to market strategy, so that while we learn about our pitch deck, we will be able to understand that from where we are coming. So what we have discussed in go to market strategy, right? Designing launch strategy and early traction. How? Visibility and exposure. Remember, access to target audience, media attention, and brand building, early brand awareness, reputation, how to create that. We have discussed about community and network, right? How the engagement and connections are very, very important, plays a very critical part. Then we discuss about the traction, momentum, how to gain it, how to evaluate it, right? How to do the user acquisition, customer acquisition. Then we have learned about the insights and analytics. Very, very important factor. Based on that, so many organizations and pivot in the past. Right? Currently, we have seen we have given an example of Ola business from cab business to EV. Drastic pivot, right? Success, unsuccessful, or work in progress, that's a different part. But we have given that example. So all this thing happened because that organization, that big, large group have done some analysis. They, you know, able to find out some catches in the market. They able to find out some kind of gap in the market. So they thought that okay, let's fill this gap. We have discussed in past that how Ola have pivoted from an proper cab company to an EV organization. Those are building EV scooters, right? So this is one classical example of analytics. Then feedback and validation. So this is very, very important factor because while you are starting, even if you are doing good, just if you just want to be stay in the market for longer period, if you want to be stay relevant to people, to market for a longer period of time, 50 years, 100 years, then feedback and validation model feedback loop is very, very important. This is what we have learned. Then what we have learned that how we can create a designing launch strategy, market research and analysis, define target audience, developing go to market strategy, KPIs पे ध्यान देना, हमारे की परफॉर्मर इंडिकेटर्स पर ध्यान देना, हमने ध्यान देना है कि हमारा कम्युनिकेशन कैसा है, लॉन्च कम्युनिकेशन कैसा है, हमारे स्टेक होल्डर्स के साथ कैसा कम्युनिकेशन है, मीडिया के साथ कैसा कम्युनिकेशन है, इंटरनल टीम के साथ कैसा कम्युनिकेशन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. देन ट्रैक्शन की स्ट्रेटजीज, कैसे हमारे पास पहला ट्रैक्शन आएगा, लोग आएंगे, कनेक्शंस आएंगे, कंज्यूमर्स आएंगे, राइट? We have discussed about the target audience, five type of adopters we have discussed: innovators, early adopters, early majority, late majority, laggards. सबसे इंपॉर्टेंट क्या था, याद करो फटाफट से, बगैर देखे कोई नहीं जाएगा पीछे. अर्ली अडॉप्टर्स, बिकॉज दे आर द टॉर्च बेरर. वो आपका प्रोडक्ट ना सिर्फ यूज करते हैं बल्कि वो काम करते हैं एक इन्फ्लुएंशियल सोर्स की तरह जो इन्फ्लुएंस करता है मार्केट को, राइट? कहते हैं कि नहीं यार ये प्रोडक्ट खरीदो, फिर आते हैं अर्ली मेजोरिटी जो उनको देख के लेते हैं, फिर आते हैं लेट मेजोरिटी, राइट? फिर आते हैं लैगर्ड्स. क्या होता है, जल्दी जल्दी पढ़ लेते हैं. अर्ली मेजोरिटी जो आपके प्रोडक्ट को यूज करते हैं, जो वो
वाइडली एक्सेप्टेबल हो जाता है। वो किसकी वजह से होता है? अर्ली अडॉप्टर्स की वजह से। फिर आते हैं लेट मेजॉरिटी। लेट मेजॉरिटी क्या होता है? दिस ग्रुप इज स्केप्टिकल एंड अडॉप्ट्स अ प्रोडक्ट व्हेन इट बिकम्स द मेन स्ट्रीम। जब सब लोग यूज करते हैं तो लेट मेजॉरिटी वाले लेते हैं। ये किसकी वजह से होता है? अर्ली मेजॉरिटी की वजह से। अर्ली मेजॉरिटी किस वजह से होता है? अर्ली अडॉप्टर्स की वजह से। एंड देन लैगर्ड, वो ऐसे होते हैं कि जो जल्दी से कुछ चेंज नहीं करते, वो वेट करते हैं, मन किया बिल्कुल एंड में लेते हैं। और इन सबके पहले आता है इनोवेटर्स। वी हैव डिस्कस दैट इनोवेटर्स किसी भी तरीके का हमारे लिए इन्फ्लुएंस का काम नहीं करते हैं। दे आर जस्ट टू यूज आवर प्रोडक्ट फॉर देयर ओन सेल्फ सेटिस्फेक्शन। उनका रिस्क टॉलरेंस हाई होता है और उनको होता है कि यार मेरे को ये नई चीज यूज करनी है। लेकिन जो अर्ली अडॉप्टर्स होते हैं इन सब में, वो एक है, वो हमारे लिए बहुत क्रिटिकल पार्ट है, क्योंकि उन्होंने ना सिर्फ हमारे प्रोडक्ट को यूज किया, एज नेम सजेस्ट, अडॉप्ट कर लिया। अर्ली अडॉप्टर्स, वी हैव टू फोकस ऑन देम, राइट? एंड देन our target audience, demographic segmentation, geographic segmentation, right? Psychographic, behavioral, राइट? ये चीजों का बहुत इंपॉर्टेंट है। कौन सी चीज कहाँ पे बिक रही है? गरम मसाले हैं, शायद ऐसी जगहों पर ज्यादा बिकेंगे जहाँ पे ठंड ज्यादा होती है। यहाँ पे ड्राई फ्रूट का मैंने एग्जांपल दिया था। कंजम्पशन ऑफ ड्राई फ्रूट जो है वो हमेशा हाई रहती है कश्मीर जैसे एरियो में, ठंड के कारण। लेकिन नॉर्थ में अगर हम नीचे आते हैं बेल्ट में, दिल्ली पंजाब की अगर हम बात करें फॉर एन एग्जांपल, तो वहां पे ड्राई फ्रूट सर्दियों में थोड़े ज्यादा, गर्मियों में थोड़े कम। ऐसा नहीं है नहीं बिकते हैं, लेकिन थोड़ा सा गैप आता है। क्यों? ज्योग्राफी की वजह से, वेदर की वजह से, बहुत सारी चीजें हैं ऐसे। डेमोग्राफिक, राइट? कौन कहाँ से आ रहा है, एज क्या है, क्या उसके पैसे कितने कमा रहा है, जेंडर क्या है, इन चीजों का बहुत फर्क पड़ता है। बिहेवियर, कैसी बिहेवियर है, कैसे कहाँ किन चीजों पे पैसा खर्च करते हैं। वी हैव डू लॉट ऑफ एनालिसिस। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, राइट? देन चैनल्स ऑफ आउटरीच, ऑर्गेनिक चैनल्स, एसईओस, वेबसाइट्स जो हम देखते हैं, है ना? मार्केट को कैसे बिल्ड करते हैं, लोगों तक कैसे पहुंचना, अपनी प्रेजेंस दिखानी ऑथेंटिक तरीके से। देन पेड एडवर्टीजमेंट, राइट? हम देखते हैं वो रील्स आती हैं, वो क्या पेड कैंपेन्स है। आपको भी ऑप्शन आता है एड्स लगाने, राइट? फिर हम इन्फ्लुएंसर के साथ पार्टनरशिप कर सकते हैं अपने प्रोडक्ट की, राइट? देन वी डू द कोलैबोरेटिव पार्टनरशिप्स। कोलैबोरेटिव पार्टनरशिप्स क्या होता है? कोलैबोरेट करना दूसरे ब्रांड के साथ। एग्जांपल दिया था नाइकी, एप्पल, स्पॉटिफाई, उबर, होता है ना, मर्सिडीज, प्यूमा, ये होती हैं कोलैबोरेशंस, को ब्रांडिंग, है ना? दोनों मर्सिडीज के फैन, प्यूमा के फैन दोनों लेंगे, है ना? इस तरीके से हम करते हैं आउटरीच। देन लॉन्च कैंपेन, कैंपेन को डिजाइन करना, अर्ली मैट्रिक्स को ट्रैक करना, यूजर फीडबैक लूप क्रिएट करना। कितना इंपॉर्टेंट है ये सब चीजें जब हम एक लॉन्च कैंपेन को रन करते हैं। आपको लगातार पढ़ना पड़ेगा। और जो मैं सेकंड मॉड्यूल के एंड से कहता हुआ आ रहा हूँ, प्रैक्टिकली करना बहुत जरूरी है। प्लीज ट्राई टू एंगेज योर सेल्फ इनटू प्रैक्टिकल असाइनमेंट, गो टू योर फ्रेंड्स, योर फैमिली, डेवलप अ प्रोडक्ट, hypothetically give them feedback forms and everything, so that it will be helpful for you, for your learning, right? Then basic pricing strategy, वैल्यू बेस्ड प्राइसिंग, आपके प्रोडक्ट की क्या वैल्यू है उसके लिए प्राइस करना। फिर कंपटीटर एनालिसिस, कंपटीटर को देख के प्राइस को जज करना। ट्रिकी हो सकता है, वेरी वेरी, इट कैन बी वेरी वेरी ट्रिकी, है ना? और या फिर इंट्रोडक्टरी ऑफर्स। हम हमेशा बात करते आए हैं कॉम्पिटिटर एनालिसिस के, कई बार हमारा प्रोडक्ट ज्यादा बेहतर होता है लेकिन हमको कंपटीशन को देखकर हम प्राइस कम भी कर देते हैं, मुश्किल हो सकती है। तो हमने क्या डिस्कस किया था? 4 काइंड ऑफ प्राइसिंग: प्रीमियम प्राइसिंग, हाई प्राइस नाउ, हाई प्राइस इन फ्यूचर, penetration pricing, low price now, high price in the future. Then pricing skimming, high price now, low price in future. And fourth, loss leader, low price now, low price in future. कैसे हमने इस पे रन करना है, ये आपको प्रैक्टिकली असाइनमेंट करने पड़ेंगे। पढ़ा आप जितना मर्जी लीजिए, लेकिन एक बार प्रैक्टिकली कर, it will help you. And then customer acquisition strategies, how to acquire customer acquisition cost plays a very important factor. Lead generation tactics, आप कैसे लीड जनरेट कर सकते हैं, रेफरल प्रोग्राम्स कैसे रन करते हैं इन सब चीजों में, रीटारगेट कैसे करते हैं उन ऑडियंस को जो आपको एक बार शायद आपको प्रोडक्ट यूज कर चुके हैं लेकिन दोबारा नहीं कर रहे हैं, राइट? नहीं तो उन्होंने इंटरेस्ट दिखाया, आप उनको कैसे रीच आउट करोगे दोबारा, सो दैट इट कैन बी मोर हेल्पफुल फॉर यू।
then building brand awareness, right? Content is very important. Content marketing, आपका content क्या है, communication क्या है, आप किस तरीके से लोगों तक पहुंच रहे हैं, very 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 important. These things can be very very useful, should be very useful. प्लीज इन चीजों पे ध्यान दीजिए, प्रैक्टिकली करने की कोशिश करिए। मैं बार बार बोल रहा हूँ, अपने फ्रेंड्स और फैमिलीज के साथ एक ग्रुप बनाइए, अपना एक प्रोडक्ट, इमेजिनरी प्रोडक्ट क्रिएट करिए, चाहे कोई बल्ब है, चाहे कोई नेल पेंट है, चाहे कोई मोबाइल फोन है, इमेजिनरी प्रोडक्ट डेवलप करिए और इन चीजों को फॉलो करिए प्रैक्टिकली, सो दैट व्हेन यू रीच आउट टू द मार्केट आपको कुछ प्रैक्टिकल अंडरस्टैंडिंग होगी, राइट? एंड देन वी हैव डिस्कस अबाउट कपल ऑफ टूल्स। मेल ऑटोमेट करता है आपकी ईमेल कैंपेनिंग को, राइट? बफर क्या करता है, बफर आपके स्केड्यूल करता है, पोस्ट वगैरह एनालाइज करता है, परफॉर्मेंस सोशल मीडिया पे, ट्रेलो जस्ट लाइक नोशन, आप अपने काम को ट्रैक कर सकते हैं, राइट? सो दिस ऑल वी हैव लर्न इन द गो टू मार्केट स्ट्रेटजी एंड लॉन्च प्लानिंग। एंड नाउ लेट्स मूव टू द फाइनल मॉड्यूल ऑफ दिस प्रोग्राम, right? And it is very, very important for all of us to understand as an entrepreneur that how to pitch your business, how to get funding, and how to ensure growth. So, are you ready, entrepreneurs?